Let us quickly revise what we saw in our previous lecture. We started with a standard spring damper mass system, and instead of letting it vibrate on its own, we put an external forcing function, which is harmonic in nature. So the forcing function is such that if you plot the graph between the force and time, you will get a sinusoidal curve of constant amplitude. And this constant amplitude is your f naught, the maximum value of f that appears at any time. And this f naught is not continuously applied. Sometimes the value falls below f naught, it goes to 0, it goes to minus f naught, then again to 0, then plus f naught. And in between, there are also places where the value of f is less than f naught and not 0. So the force is continuously varying with time. So this sort of sinusoidal forcing function is applied on your spring mass damper system. And what we are interested to know is how the system will behave. What will be the frequency of the system? See, if you do not apply this f naught sine omega t, this is important to understand. Okay, let us delayer the complete set once again. Initially, you started with this simple spring and mass. You were interested to know what will be the frequency. So you know that in this case, the frequency is under root k by m. Then you introduced a damper of value c. And now you wanted to say, once again, disturb the mass and see what will be the natural frequency now. Then you found that in this case, the natural frequency, or rather what we now call as the damped natural frequency, will be equal to omega n under root 1 minus zeta square. Here, this omega n is exactly the same अंडर रूट के बाई एम. ये ओमेगा एन तो वही अंडर रूट के बाई एम है, लेकिन डैम्पर लगाने के कारण अब ये अपने आप जो वाइब्रेशन करते टाइम फ्री वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो ओमेगा एन नहीं आएगी, वो ओमेगा डी आएगी, क्योंकि अब डैम्पर लगा दिया. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज दिस जीटा. तो हमने कहा कि यस वी नो दैट जीटा इज इक्वल टू सी अपॉन सी सी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, सी तो हमें पता है, हमने खुद ने सिस्टम में लगाया था, तो हमें पता ही है सी क्या चीज है. ये सीसी क्या चीज आ गई. We said this is a critical damping coefficient, and this is not actually something that depends on the damping, but it is rather given by 2 root km. तो बोला कि मतलब सिस्टम का स्प्रिंग कांस्टेंट ले आओ, सिस्टम का मास ले आओ, अंडर रूट कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सीसी मिल जाएगी. So if you know the value of c which you yourself attached into the system, if you know the mass, if you know the spring constant, then you know cc also. So if you know c and cc, you know zeta. तो आपको अब कुल मिलाकर के अपना क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि अगर मैं स्प्रिंग लाऊं, डैम्पर भी लाऊं और मास लाऊं, इनको अटैच करके वाइब्रेट कराऊं फ्रीली, फोर्स्ड वाइब्रेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आई एम गोइंग टू वाइब्रेट इट फ्रीली, तो ये किस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेगा. द आंसर इज ओमेगा डी पे वाइब्रेट करेगा, which is given by omega n under root 1 minus zeta square. That's it. This is a very important result which you have to remember. ठीक है. और ओमेगा डी क्या चीज है? दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री वाइब्रेशन. तो अब अपन को ये पता है कि बिना डैम्पर के अगर मैं वाइब्रेट कराऊं फ्री वाइब्रेशन, तो ओमेगा एन आएगी, which is under root k by m. डैम्पर लगा के वाइब्रेट कराऊं फ्रीली, तो ओमेगा डी आएगी फ्रीक्वेंसी. अब अगला क्वेश्चन ये बनता है कि अगर मैं इसको फ्री वाइब्रेशन करने ही नहीं दूं और मैं इसको वाइब्रेट कराऊं, कैसे वाइब्रेट कराऊं? ए लगा दिया, सी लगा दिया, एम लगा दिया, अब इसका फ्रीडम छीन लिया अपन ने. हम कह रहे हैं कि अब मैं बताऊंगा कि तुम्हें कैसे वाइब्रेट करना है. So you attach some system, some mechanism, you construct some mechanism by virtue of which you
apply a forcing function f naught sin omega t, और आपके फोर्सिंग फंक्शन की फ्रीक्वेंसी ये है ओमेगा, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर फोर्सिंग फंक्शन। तो आप लगा रहे हो ना ये, तो इसके साइनोसॉइडल वेव फॉर्म की ओमेगा क्या होगी, ये आपके हाथ में है। सो यू डिसाइड व्हाट ओमेगा इज, दिस इज नॉट अननोन, दिस इज नोन टू यू बिकॉज यू आर अप्लाइंग। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ योर फोर्सिंग फंक्शन। एंड नाउ व्हाट यू आर इंटरेस्टेड टू नो इज कि अगर मैं मास को अपनी फ्रीक्वेंसी पे अपने फोर्स से वाइब्रेट करवाऊं, तो क्या ये मास मेरी दी हुई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेगा या नहीं करेगा? क्या इस मास के वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी ओमेगा होगी या कुछ और होगी? क्योंकि फ्री वाइब्रेशन में तो बिना डैम्पर के ओमेगा एन है इसकी फ्रीक्वेंसी, डैम्पर लगा करके इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी है। अब जब मैं ओमेगा की फ्रीक्वेंसी लगा के इसको वाइब्रेट कराऊं, तो क्या इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा होगी क्या? ये पता करना चाहता, ये कितना ऊपर और कितना नीचे जाएगा अगर एफ नॉट साइन ओमेगा टी की फोर्स में लगाता हूं तो। और अगर मैं अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकता हूं, ये जो ओमेगा है, इफ आई कैन चेंज इट, यस यू कैन चेंज इट। आप इसको स्पीड बढ़ा सकते हो अपने मशीन की तो ओमेगा बढ़ जाएगी, स्पीड घटा सकते हो अपने मशीन की तो ओमेगा घट जाएगी। सो द कंट्रोल ऑफ ओमेगा इज ऑल्सो इन योर हैंड, कि आप मशीन को तेज चलाना चाहते हो या धीरे चलाना चाहते हो। तो ये, हाँ एक सेकेंड होल्ड करना। हाँ क्या बोल रहे हो बेटे आप? बोलो अमन, बोलो बोलो, व्हाट हैपेंड? कुछ बोल तो रहे थे ना कोई, कौन बोल रहे थे? हाँ अमन बोलो बोलो, क्या हुआ? ओके, So mic issue था। कोई और जरा बताएंगे, आवाज वगैरह क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है सर। यस सर। मेरे यहाँ से तो ट्रांसमिशन ठीक है, आई आई होप सो। सो एनीवे लेट सर अस, आपकी वॉइस क्लियर है। चलो कंटिन्यू करते हैं अपन। So I was saying that the control of this omega is again in your hands। ठीक है, तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि मैं अगर अपनी फ्रीक्वेंसी या अपनी स्पीड को कम ज्यादा करूं, तो इस मास की एम्पलीट्यूड कम ज्यादा होती है क्या साथ में? ये सारी चीजें मेरी इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्टिव है। आई वांट टू फाइंड आउट ऑल दिस थिंग्स, कि मैं ओमेगा से वाइब्रेट कराऊं तो मास ओमेगा से वाइब्रेट करेगा कि नहीं करेगा, मैं अपने ओमेगा को चेंज करूं तो मास के एम्पलीट्यूड में फर्क आएगा कि नहीं आएगा। ये चीजें मैं इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ। इसके लिए अपन ने इन्वेस्टिगेशन के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई, डिफरेंशियल इक्वेशन बना करके चेक किया कि किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। Once we found that it is a linear second order non-homogeneous differential equation, then we concluded that such type of equations can only be solved by taking the complementary function and particular integral। फिर हमने कहा कि चलो अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे बनाते हैं। हमने कहा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पार्ट बनाना तो आसान है। क्या करने का है, इक्वेशन पे देखो कि नॉन होमोजीनस इस इक्वेशन को कौन कौन सी टर्म्स बना रहे हैं। तो हमने बोला कि बस एक ही टर्म है साहब, ये टर्म है जो इस इक्वेशन को नॉन होमोजीनस बना रही है। तो हमने कहा कि इसको अभी हटा दो यहां से। इसको हटा दिया का मतलब राइट साइड में अब क्या रह जाएगा, जीरो रह जाएगा। So if you remove the non-homogeneity, then
whatever remains is the homogeneous part. और जो होमोजेनस पार्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उससे अपन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनाते हैं, और अकेला जो नॉन होमोजेनिटी कॉज करने वाला पार्ट है उससे पर्टिकुलर इंटीग्रल बनाते हैं. दिस इज हाउ वी डू इट. सो वी सेड कि चलो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पार्ट अब ये रह गया. नाउ एज सून एज यू लुक्ड एट दिस इक्वेशन, आपने कहा अरे ये तो पहचाना हुआ इक्वेशन है, इसको तो जानते हैं हम, पिछले क्लास में अपन ने सॉल्व किया था. क्या था ये इक्वेशन इसकी है कि अगर मैं स्प्रिंग ले लूं, डैम्पर ले लूं और मास ले लूं और इसको फ्री वाइब्रेशन कराऊं, अब देखो फोर्सिंग फंक्शन नहीं है क्योंकि फोर्सिंग फंक्शन ही आपका नॉन होमोजेनस पार्ट था, उसको हटा दिया, तो अब ये फ्री वाइब्रेशन का केस हो गया. तो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज दिस part which you are calling as the complementary function part of your overall equation is nothing but the simple differential equation of the same system when there is no forcing function and your vibrations are free vibrations. यानी कि ये खुद से जब वाइब्रेट करे, आप इसको एक बार छेड़ के छोड़ दो फिर ये अपने आप जो वाइब्रेशन दिखाएगा उसको फ्री वाइब्रेशन कहते हैं. तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये तो, और इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन अपन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं पिछले क्लास में. सो द कंप्लीट डेरिवेशन, अब इसमें आपको ये एज्यूम करना पड़ेगा कि आपका डैम्पर जो है तो आप कहोगे अंडर डैम्पिंग है. आपका डैम्पिंग कांस्टेंट सीसी के बराबर है क्या, तब आप कहोगे क्रिटिकल डैम्पिंग है. और आपका डैम्पिंग कांस्टेंट सीसी से ज्यादा है क्या, तब आप कहोगे ओवर डैम्पिंग. ये तीन केसेस बनते थे. तो अभी अपन ये कह रहे हैं कि भाई वाइब्रेशन तो सिर्फ एक ही केस में होते हैं, अंडर डैम्पिंग में. क्रिटिकल डैम्पिंग और ओवर डैम्पिंग में वाइब्रेशन होते ही नहीं है. आपको गन का एग्जांपल दिया था, बोफोर्स गन का एग्जांपल दिया था, और गाड़ियों के शॉक एब्जॉर्बर के एग्जांपल्स दिए थे जिनमें क्रिटिकल डैम्पिंग होती है. डोर क्लोजर के एग्जांपल लिए थे जिसमें ओवर डैम्पिंग होती है. तो क्रिटिकल डैम्पिंग और ओवर डैम्पिंग में वाइब्रेशन तो होता ही नहीं है, बस आपने खींच के छोड़ दिया तो ये धीरे धीरे अपनी मेन पोजीशन पे वापस जाकर रुक जाएगा. वाइब्रेशन जो कि एक्चुअली कुछ आपको एक साइनोसॉइडल वेवफॉर्म मिले, ये तो सिर्फ अंडर डैम्पिंग में होती है. सो वी से कि सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट वाइब्रेशंस एंड सम एम्पलीट्यूड हैज टू बी सीन, so let us assume under damping, and we already know the solution of complementary function part. Why? Because the complementary function part is the same differential equation for free vibrations of the spring mass damper system, which we have already solved for under damping, critical damping and over damping. तो अंडर डैम्पिंग के केस में जो अपना सॉल्यूशन मिला था वो इस फॉर्मेट का. तो अपन ने वो बहुत लंबी जो कहानी कही थी वो पूरी रिपीट नहीं करेंगे, अपन सिर्फ ये कह देंगे कि we know what the solution of complementary function part is going to be. हम इस इक्वेशन को पहचानते हैं, इसको सॉल्व कर रखा है और इसका सॉल्यूशन ये आता है, ये कह दिया अपन ने सीधे ही. तो पूरी की पूरी कहानी को अपन ने गायब कर दिया और सीधे कंक्लूजन पे आ गए कि दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पार्ट. बट प्लीज ऑब्जर्व कि मैं यहां पर अभी इस पार्ट में सॉल्यूशन के सामने y सफिक्स c लगा रहा हूं. यहां पर ये देखिए, ये इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि ये जो सॉल्यूशन है ये सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पार्ट का सॉल्यूशन है. और जैसा कि मैंने आपको कहा था, your complete solution will only be obtained as the sum of complementary function and particular integral. तो आपने yc का सॉल्यूशन तो बोला कि हमें पता है, तो हमने डायरेक्टली yc को ये मान लिया, ये है हमारा सॉल्यूशन. अब अपने पास एक टास्क रह गया, yp निकालो. yp भी मिल जाए तो इन दोनों को ऐड करके जो बनेगा वो बोलेंगे हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है. किसका? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का. ये वाले डिफरेंशियल इक्वेशन इसको हम सॉल्व कर रहे हैं अभी. हमारी लीनियर सेकेंड ऑर्डर नॉन होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन है y. और ये y कैसे मिलेगा? पहले yc निकाला, अब yp निकालेंगे और उन दोनों को ऐड कर देंगे, इस तरीके से y निकलेगा. तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग. ठीक है. एनीवे, yc इज ऑलरेडी इन आवर हैंड्स.
नाउ लेट अस सी वाई पी कैसे निकाला जाता है। नाउ यू सी, डिफरेंशियल इक्वेशन के हिसाब से अगर देखा जाए, आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन थी एम वाई डबल डॉट प्लस सी वाई डॉट प्लस के वाई इक्वल टू एफ नॉट साइन ओमेगा टी। आपने कहा कि भाई इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, एक पार्ट में तो सिर्फ ये एफ नॉट साइन ओमेगा टी रखो और एक पार्ट में सिर्फ ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पार्ट। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पार्ट का सॉल्यूशन आ गया, वाई सी मिल गया। वाई पी इसके कारण पैदा होता है, एफ नॉट साइन ओमेगा टी के कारण। सो वी डायरेक्टली से भाई फोर्सिंग फंक्शन अगर एफ नॉट साइन ओमेगा टी है तो वाई पी जो होगा वो किस फॉर्मेट का होगा, ये भी साइनोसॉइडल तो होना ही चाहिए, कुछ तो साइनोसॉइडल होगा, ठीक है। और इसका कोई एम्पलीट्यूड भी बनेगा, उसको बाय नॉट कह लो। अब इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने कहा कि लेट अस एज्यूम दैट द पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन विल बी दिस, जिसमें एम्पलीट्यूड वाई नॉट कितना होगा ये तो मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन मुझे ये पता है कि अगर मैं एक्सटर्नल फोर्सिंग फंक्शन को ओमेगा की स्पीड से चला रहा हूं तो मेरा पर्टिकुलर इंटीग्रल पार्ट का जो सॉल्यूशन है वो भी ओमेगा पर ही वाइब्रेट करता हुआ नजर आएगा। कुछ एम्पलीट्यूड मिलेगा, ये अभी मुझे नहीं पता कितना है, तो मैं इसको एक जनरल वाई नॉट लिख रहा हूं। ये साइनोसॉइडल फॉर्मेट है तो मेरा वाई पी भी साइनोसॉइडल होगा। बस एक ये मिस्ट्री छूट गई, ये माइनस फाइव क्यों किया। फाई जो है जनरली अपन लोग फेस एंगल के तौर पे लेते हैं, तो अगर ये एफ नॉट साइन ओमेगा टी है तो इसका सॉल्यूशन वाई नॉट साइन ओमेगा टी क्यों नहीं होगा, ये फाई कहां से आ गया। इतना सा ले लेता मैं सॉल्यूशन, व्हाई शुड आई टेक दिस फाई। तो यहां पर एक ये जरूरी है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक फेस एंगल से वेरी करते हैं। आपने फोर्स लगाया है, फोर्स लगने से पहले डिस्प्लेसमेंट नहीं था, फोर्स जब लगाया तब डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुआ। तो इसका मतलब है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये इस फोर्स को फॉलो करता है, इट फॉलोज बिहाइंड इट, एंड दैट इज व्हाई द फेस एंगल इज लैगिंग ऑलवेज फॉर डिस्प्लेसमेंट। और वैसे भी अगर आप याद करके देखें, सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी अगर आप याद करें जिसमें कि कोई फोर्सिंग फंक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है, तो आपको एक वेक्टर डायग्राम याद होगा, मैंने आपको बनवाया था, you please revisit your notes, you will find it, कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट है y at omega t right now, तो इससे 90 डिग्री लीड करेगा वेलोसिटी y डॉट, और वेलोसिटी से भी 90 डिग्री लीड करेगा एक्सेलरेशन y डबल डॉट। यानी कि कुल मिलाकर के एक्सेलरेशन जो है दैट लीड्स डिस्प्लेसमेंट by 180 degree if it is pure simple harmonic without excitation, ठीक है। और y नॉट के साथ में अगर आप एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो फोर्स हो गया। तो कुल मिला के अपन ये कह सकते हैं कि फोर्स ऑलवेज लीड्स डिस्प्लेसमेंट। तो इस लॉजिक को यूज करते हुए हमको यहाँ पे -5 लिखना पड़ेगा। ये आपकी चॉइस नहीं है, ये कंपलसरी है। और यहाँ पे प्लस भी नहीं कर सकते, क्योंकि प्लस करने का मतलब क्या हो गया, आप ये बोल रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट फोर्स लगाने से पहले ही पैदा हो गया, ये तो असंभव है। तो इसीलिए माइनस साइन भी आएगा और एक फेस एंगल भी आएगा, ये जरूरी है। सो नाउ देयर आर टू थिंग्स दैट वी डू नॉट नो अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ योर पर्टिकुलर इंटीग्रल पार्ट। इतना पता है फोर्स साइनोसॉइडल है तो सॉल्यूशन भी साइनोसॉइडल होगा, फोर्स की फ्रीक्वेंसी ओमेगा है तो सॉल्यूशन की फ्रीक्वेंसी भी ओमेगा होगी। एम्पलीट्यूड कितना आएगा ये नहीं पता, और कितने फेस से ये एक्चुअली लैग करेगा ये भी नहीं पता। तो अब आपका टास्क सिर्फ इतना ही है, y पता करना है तो yc और yp चाहिए, yc हमें मिल गया, yp पता करना है तो अब अपन को ये पता करना है कि what is y naught and what is phi. So the rest of the investigation that you are going to see as a mathematical treatment
is targeted towards finding the value of y naught and the value of phi. ये दो चीजें पता करने के लिए, ठीक है। अब यहां से आपको जो प्रोसीजर है स्टार्टिंग फ्रॉम पेज 3 of 9, ये एक बिल्कुल स्टैंडर्ड मैथमेटिकल स्टेप है। अब इसको मैं एक एक करके जो लिखा हुआ है या आपको उंगली पकड़ के इस पे चलाऊं, इसकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या करने का है, जो करने का काम है ये पूरा मैंने यहाँ पे लिख रखा है। नाउ यू गो थ्रू दिस, गो थ्रू द मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, और उसके बाद एक बार इसको बिना देखे अपने आप रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करो। दिस इज अ डेरिवेशन, स्टैंडर्ड स्टेप्स आर देयर, इसको समझो बेसिकली अपन ने क्या किया है। एंड फाइनली लेट अस रीच हियर। पेज नंबर 3 जो है ये मैं चाहता हूं कि आप लोग सब इंडिविजुअली गो थ्रू करें। सिंपल स्टेप्स हैं और आई एम 100% श्योर कि इस पे एक भी ऐसा स्टेप नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर हियर, ठीक है। लेकिन उंगली पकड़ करके मैं आपको ये एक एक चीज, अब इसको इसमें डालो, ये सब मैंने लिख रखा है, तो यहां पर पढ़ के सुनाने की जरूरत नहीं है आपको। यू गो थ्रू दिस, इट्स अ स्टैंडर्ड डेरिवेशन, यू शुड नो हाउ टू डू इट। इवेंचुअली यू अराइव एट y naught like this and phi like this। तो ये जो डेरिवेशन यहाँ पे किया हुआ है, आपने जो ट्रीटमेंट किया है पेज नंबर 3 में, ठीक है। यू स्टार्ट फ्रॉम हियर, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 ये रही आपकी, जो आपने सॉल्यूशन अज्यूम किया था, वहां से आप मैथमेटिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हो। और उसके बाद इवेंचुअली आफ्टर सम मैथमेटिकल ट्रीटमेंट you end up finding the values of those parameters which you wanted to find। आपको y नॉट चाहिए था और phi चाहिए था बाई p बनाने के लिए, ये दोनों मिल गए, ठीक है। अब इसके बाद एक छोटा सा ट्रीटमेंट और फर्दर करेंगे इसमें। ये देखो, y नॉट है f नॉट अपॉन अंडर रूट k माइनस m ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस c ओमेगा का होल स्क्वायर। वी आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म दिस इक्वेशन इनटू समथिंग दैट वी कैन रिमेंबर नाउ। अब क्या करने जा रहे हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय के, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन है, इसमें न्यूमरेटर को भी के से डिवाइड करना है और डिनोमिनेटर को भी के से डिवाइड करना है। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये अभी पता लग जाएगा। एफ नॉट बाई के दिस। सिमिलरली फाई का जो एक्सप्रेशन है उसमें भी अपन यही करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को के से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो y नॉट का एक्सप्रेशन तो बन गया ये, पाई का एक्सप्रेशन बन गया ये। आगे चलते हैं। अब देखो आपके कैसे कैसे टर्म्स आ रहे हैं। y नॉट के एक्सप्रेशन में एक टर्म तो आ रही है एफ नॉट बाई के, एक टर्म आ रही है एम ओमेगा स्क्वायर बाई के, एक टर्म आ रही है सी ओमेगा बाई के। सिमिलरली पाई के एक्सप्रेशन में भी सी ओमेगा बाई के दिख रहा है, एम ओमेगा स्क्वायर बाई के दिख रहा है। अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन देखो, एम ओमेगा स्क्वायर बाई के लिए मैं इस एम को के नीचे ला सकता हूं, यहाँ पे आई कैन ब्रिंग इट हियर एज अ डिनोमिनेटर। ये किया मैंने। के बाई एम क्या होता है, अंडर रूट ऑफ के बाई एम हमें पता है, दिस इज ओमेगा एन। तो के बाई एम क्या होगा, ओमेगा एन का स्क्वायर होगा। तो ये जो चीज है कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूं, wherever I see m omega square by k, I can replace it by omega square upon omega n का square, और simply by omega by omega n का whole square। इससे रिप्लेस कर सकता हूं। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पर m ओमेगा स्क्वायर बाई के दिख रहा है, इसको हटाएंगे और ये फिट कर देंगे। यहां पर m ओमेगा स्क्वायर बाई के दिख रहा है, इसको हटाएंगे और ये फिट कर देंगे। ये करने चाह रहे हैं अपन, ठीक है। सिमिलरली नाउ लुक एट अनदर ट्रीटमेंट। एक और रिप्लेसमेंट अपन को करना है, ये सी ओमेगा बाई के, इसको हटाना है। तो क्या करेंगे, सी ओमेगा बाई के रखा। अब देखो यहां पर एक सी सी रखा
और यहाँ पर ऊपर एक सीसी रखा, ये किया है मैंने, ये देखो यहाँ पे, और ये सी बाई सीसी को एक ग्रुप बना लिया, ठीक है। फिर उसके बाद एक और काम किया, नीचे एक 2m रखा, ऊपर एक 2m रखा। अभी सब समझ में आ जाएगा ऐसा अपन क्यों कर रहे हैं, ठीक है। सीसी, सी बाई सीसी क्या होता है, जीटा होता है, ठीक है। और सीसी बाई 2m क्या होता है, देख लेते हैं अपन एक बार, सीसी बाई 2m क्या है। सीसी क्या है, 2√km, ये कैंसिल हो गया, अंडर रूट m से अंडर रूट m कैंसिल हो गया, तो कुल मिलाकर के ये बन गया अंडर रूट k/m, ठीक है। तो ये सीसी बाई 2m जो है, दिस इज नथिंग बट ओमेगा m। तो ये रिप्लेसमेंट यहां कर दिया अपन ने, ये सीसी बाई 2m को अपन ने ओमेगा n लिख दिया, सी बाई सीसी को जीटा लिख दिया, ये पता ही है डैम्पिंग रेशियो है। नाउ व्हाट रिमेन्स इज 2m/k। अब इसमें वापस से m को k के नीचे ले आओ, तो ये क्या बन जाएगा, ओमेगा n का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ओमेगा n से एक ओमेगा n कैंसिल हुआ, तो नीचे ओमेगा n ऊपर ओमेगा। सो फाइनली वी अराइव एट दिस एक्सप्रेशन 2 जीटा ओमेगा अपॉन ओमेगा n। कुल मिलाकर के बात यह है, इतना ट्रिकी मैनिपुलेशन किया है, कन्वर्जन सिर्फ इतना सा है, सी ओमेगा बाई के को 2 जीटा ओमेगा अपॉन ओमेगा n लिख सकते हैं। सो वेर एवर इन योर एक्सप्रेशन ऑफ y नॉट एंड फाई यू फाइंड सी ओमेगा बाई के, उसको हटा दो और 2 जीटा ओमेगा बाई ओमेगा n रख दो। सी ओमेगा बाई के दिख रहा है, इसको हटा दो, 2 जीटा ओमेगा बाई ओमेगा n रख दो। दिस इज द रिप्लेसमेंट दैट वी वांट, ताकि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ जाए। हालांकि अपना काम तो खत्म यही हो गया। प्लीज नोट, आपका ऑब्जेक्टिव क्या था। बड़ी बड़ी लंबी लंबी कैलकुलेशंस के आने से कई बार ऑब्जेक्टिव्स अपने माइंड से गायब हो जाते हैं। भाई कर क्या रहे हैं, याद ही नहीं रहता, पता नहीं कुछ ना कुछ किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, बहुत लंबी चौड़ी गणित हो गई। करना क्या चाहते थे, ये करना चाहते थे, वाई पी पता करना चाहते थे, जिसमें वाई नॉट नहीं पता था, फाई नहीं पता था। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट जो अपन ने किया उसके एंड में वाई नॉट और फाई पता लग गए, कहानी तो यही खत्म हो गई। आप चाहते तो बस उसको रख दो वाईपी के फॉर्मूले में, बोलो मिल गया वाईपी, अब लेके आओ वाई सी और वाईपी को ऐड करो, वाई बनाओ, फिनिश। लेकिन अपन क्या चाहते हैं कि ये के एम ओमेगा सारी चीजें बार बार नहीं आनी चाहिए, अपन इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाना चाहते हैं, जो कि अपन एक इक्वेशन याद रख सकें इनके लिए, ठीक है। तो वही कर रहे हैं अपन, इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये सब किया, फाइनली जो मैंने बताया, सी ओमेगा बाई के को इससे रिप्लेस करो, एम ओमेगा स्क्वायर बाई के को इससे रिप्लेस करो, और एक शॉर्टकट और ले लिया अपन ने, ये बार बार ये ओमेगा बाई ओमेगा एन भी आ रहा है, इसको एक आर से रिप्लेस करो। नाउ दिस इज अ बॉक्स्ड अप इक्वेशन, यू हैव टू रिमेंबर इट एट ऑल टाइम्स। कहीं पर भी मैं स्मॉल आर लिखूं तो इसका मतलब क्या है, इसको मैं बिल्कुल प्रॉपरली भी डिफाइन कर सकता हूं। दिस इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी रेशियो, ठीक है। फ्रीक्वेंसी रेशियो क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्सिंग फंक्शन। ये देखो, ये ओमेगा क्या था, ये याद रखिए, आपने अपने मास पे जो फोर्सिंग फंक्शन लगाया था एफ नॉट साइन ओमेगा टी, तो इस फोर्सिंग फंक्शन की फ्रीक्वेंसी थी ओमेगा। तो ये ओमेगा आपको पता है कि आप किस फ्रीक्वेंसी पे गाड़ी चला रहे हो, किस स्पीड से गाड़ी चला रहे हो। बेसिकली ये एक स्पीड इंडिकेटर है। ये आपने अपने गाड़ी के एक्सेलरेटर पे पैर दबाया तो गाड़ी का इंजन तेज घूमेगा, क्योंकि आपने थ्रोटलिंग वॉल्व को प्रेस किया है, तो ज्यादा पेट्रोल जाएगा इंजन के अंदर, ज्यादा पेट्रोल जाएगा तो इंजन की आरपीएम बढ़ेगी, आरपीएम बढ़ेगी तो ओमेगा बढ़ गई। यही है ये।
बेसिकली ये जो ओमेगा है ये हवा में बात नहीं हो रही है, ये आपकी ऑटोमोबाइल्स के लिए, इलेक्ट्रिक मोटर्स के लिए, स्टेपर मोटर्स के लिए, जो भी चीज मोटर या मशीनरी है और अगर वो अलग अलग स्पीड पे चलाई जा सकती है तो उसकी स्पीड है ये ओमेगा। इट इज जस्ट द स्पीड, दैट्स ऑल। एफ नॉट साइन ओमेगा टी में ये ओमेगा जो है यही स्पीड है आपकी। तो दिस इज अंडर योर कंट्रोल। आप स्पीड बढ़ाओ, स्पीड कम करो, तो बेसिकली ओमेगा बढ़ और कम रही है। और नीचे ओमेगा एन है, ये क्या है? इसकी यूनिट भी रेडियन पर सेकंड होती है, लेकिन ये चीज दूसरी है। ये क्या है? ये आपके सिस्टम का पैरामीटर है, इट इज अंडर रूट के बाई एम। तो आपका जो मास था उस पे ये सवाल उठाइए कि भाई तुम्हारी इलास्टिसिटी कितनी है, के डैम्पर भी लगा रखा है, ये बाद में आता है। तो ये के और ये एम, इन दोनों पे निर्भर करती है आपकी नीचे वाली ओमेगा एन। दिस इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। और इसको, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस स्पीड पे गाड़ी चला रहे हो। आप तेज चलाओ, धीरे चलाओ या मत चलाओ, ओमेगा एन तो फिक्स है। अगर आप गाड़ी नहीं चला रहे हो, बंद है, तो ओमेगा जो है ऊपर वाला ये तो जीरो हो जाएगा। कम स्पीड पे चलाओ, तेज स्पीड पे चलाओ, तो ओमेगा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। लेकिन ओमेगा एन तो फिक्स है, सिस्टम बन चुका है, के आ गया, उसका एम आ गया, तो अंडर रूट के बाई एम ओमेगा एन, खत्म। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी रेशियो क्या है? once again, it is defined as the ratio of the actual frequency at which the system is being run right now divided by the natural frequency of the system omega n. This thing is called as frequency ratio. और r जो है, चूंकि दोनों की यूनिट रेडियन पर सेकेंड है, तो इसीलिए r की कोई यूनिट नहीं होगी। इट्स अ रेशियो एंड इट इज डायमेंशनलेस। तो अब मैं कहीं पर भी ओमेगा बाई ओमेगा एन लिखना चाहूंगा, मैं उसको सीधे r पटक दूंगा। नाउ r इज द फ्रीक्वेंसी रेशियो। तो अब इस चीज को देखते हुए यहाँ वापस आ जाते हैं। अब अपन ने ये भी कर लिया कि भाई अपन ये जो रिप्लेसमेंट कर रहे हैं उसको ओमेगा बाई ओमेगा एन भी मत लिखो, उसको सीधे r ही लिख दो। सो दिस क्वांटिटी बिकम्स 2 zeta r and this quantity becomes r square. That's all. ठीक है। अब ये रिप्लेसमेंट आपने किए, अब एक रिप्लेसमेंट और करना है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशन है, हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग माथा पीट रहे हो, यार पता नहीं कहाँ फंस गए, लेकिन ये है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। एंड अमंग ऑल द डेरिवेशन, इसके वाइब्रेशन के सारे डेरिवेशंस हैं, थोड़े से लंबे हैं, लेंथी हैं, फ्रस्ट्रेटिंग है। बट इफ यू पुट इन इनफ प्रैक्टिस एंड अंडरस्टैंडिंग एंड पेशेंस, टाइम के साथ में ये ईज अप हो जाता है। हाँ, और अगर मेहनत नहीं करोगे तो ऑब्वियसली इट्स नॉट एन ईजी सब्जेक्ट, टफ तो है। बट आई एम ट्राइंग टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल, एज इजी टू अंडरस्टैंड एज पॉसिबल। चीजों के कॉन्सेप्ट, चीज क्या है, फ्रीक्वेंसी रेशियो का एक्चुअल मतलब क्या है, जीटा कैसे आया था, डैम्पिंग क्या होती है, सारी चीजें मैं टाइम टू टाइम लेक्चर्स में आपको रियल वर्ल्ड सिनारियो से कनेक्ट करके समझाने की कोशिश तो कर रहा हूँ। बट इवेंचुअली एवरीथिंग विल बॉयल डाउन टू द अमाउंट ऑफ टाइम यू आर इन्वेस्टिंग इन द सब्जेक्ट। लास्ट मोमेंट के लिए छोड़ोगे इस सब्जेक्ट को, तब तो आपके पास सिर्फ एक ही चारा रहेगा, सब कुछ रट लो, समझ में आए नहीं आए उसका कोई मतलब नहीं है, टाइम कम है, एग्जाम सर पे आ गया, डेरिवेशंस आएंगी, न्यूमेरिकल्स आएंगे, रट लो। दैट इज वन वे आउट। यस, पास भी हो जाओगे लेकिन इंजीनियर नहीं कहलाओगे, खाली खोखली डिग्री मिलेगी बस, और कोई बिना अक्कल के इंजीनियर रह जाओगे। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ ईच इक्वेशन दैट यू आर लर्निंग इन क्लास। एनीवे, लेट अस कंटिन्यू। अब यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट और आ रहा है, जीरो फ्रीक्वेंसी डिफ्लेक्शन कहते हैं जिसको, एफ नॉट अपॉन के। किताबों में इसका डेरिवेशन या डेफिनेशन सिर्फ इतना सा ही है, इट इज द डिफ्लेक्शन दैट विल बी जनरेटेड इफ द स्प्रिंग मास डैशपॉट सिस्टम इज हेल्ड बाय अप्लाइंग अ स्टैटिक फोर्स एफ नॉट इंस्टेड ऑफ द साइनोसॉइडल एफ नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये क्या चीज है, इसको एक बार मैं आपको समझाता हूँ, इलेबोरेट करता हूँ। ये बाय एस टी क्या चीज, अपना सिस्टम कैसा था, स्प्रिंग है, डैशपॉट है, मास। ठीक है, अब ये सबको पता है
कि अगर ये मास यहां नहीं लगा होता तो ये सिस्टम ऐसा होता। ऐसा क्यों? क्योंकि मास के लटकाने से आप इस पे एक स्टैटिक फोर्स लगा रहे हो mg, और उसके कारण इसमें एक स्टैटिक डिफ्लेक्शन आ जाता है डेल्टा। तो इसका मतलब है एक स्प्रिंग और एक डैशपॉट के ऊपर अगर आप एक स्टैटिक फोर्स लगा के रखोगे तो एक स्टैटिक डिफ्लेक्शन आएगा, और मास लटका दिया तो मास के कारण जो फोर्स है mg उसके कारण एक स्टैटिक डिफ्लेक्शन आ जाएगा। लेकिन अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि अच्छा, अगर मैं ये मास ना लटकाऊं और अगर मैं इस सिस्टम पे एफ नॉट फोर्स लगाऊं स्टैटिकली, प्लीज माइंड इट, देखो मैंने यहाँ पे साइन नहीं लिखा है, इसमें साइन ओमेगा टी नहीं लिखा है। ये एफ नॉट मैं कहां से लेके आया? सबसे पहले मैंने कहा था कि मैं एफ नॉट साइन ओमेगा टी की साइनोसॉइडल फोर्स लगा रहा हूं, तब तो ये हार्मोनिक एक्साइटेशन थी। फिर आपसे ये पूछा गया कि अच्छा, इसमें ये एफ नॉट साइन ओमेगा टी में ये एफ नॉट क्या चीज है, ये कांस्टेंट है, वेरिएबल है, क्या है? तो आपने जवाब दिया कि नहीं नहीं साहब, ये एफ नॉट तो कांस्टेंट है। ठीक है, एफ वेरिएबल है, एफ नॉट साइन ओमेगा टी इज एफ, दिस एफ इज वेरिएबल बट एफ नॉट इज कांस्टेंट। तो बोला कि अच्छा जरा इसके ग्राफ में एफ नॉट बताओ क्या चीज है। तो आपने बोला कि देखो एफ तो यूं चल रहा है, एफ हर टाइम चेंज हो रहा है, कभी जीरो हो रहा है, कभी नेगेटिव हो रहा है, कभी मैक्सिमम पे जा रहा है। लेकिन जब भी ये एफ मैक्सिमम पे आता है तो उसकी वैल्यू हमेशा एफ नॉट होती है। यहाँ पे एफ नॉट था, अब यहाँ पे मैक्सिमम पे आया, यहाँ पर भी एफ नॉट है, यहाँ पे मैक्सिमम पे आया, यहाँ पर भी एफ नॉट है। अच्छा, जब उल्टा जा रहा है तब भी नीचे भी एफ नॉट है। नेगेटिव है तो क्या हुआ, मैग्नीट्यूड तो एफ नॉट ही है। सो एफ नॉट इज कॉल्ड एज द फोर्स एम्पलीट्यूड एंड इट इज कांस्टेंट। तो अब आप ये कह रहे हो कि चलो ठीक है, एफ नॉट साइन ओमेगा टी की फोर्स आप साइनोसॉइडली लगा रहे हो ना, अब एक काम करो, इसको साइनोसॉइडली मत लगाओ, आप ये साइन हटा दो और सिर्फ एफ नॉट, भाई एफ नॉट एक एम्पलीट्यूड है तो न्यूटन में कोई फोर्स होगी ना, होगा शायद ये 2 न्यूटन होगा, 10 न्यूटन होगा, कुछ तो होगा एफ नॉट। तो जितना भी ये एफ नॉट है, लेट अस से 5 न्यूटन है, ठीक है, तो ये 5 न्यूटन की फोर्स को स्टैटिकली यानी कि बिना साइनोसॉइडल फॉर्मेट के बस एक एक नीचे को 5 न्यूटन की तरह खींच के रख लो बस। तो अगर मैं इस स्प्रिंग और डैशपॉट को, अभी मास नहीं है, ठीक है, एफ नॉट की मैग्नीट्यूड से नीचे को खींच के रखूं तो ये कितना स्टैटिक डिफ्लेक्शन दिखाएगा? देखो भाई, साइनोसॉइडल फोर्स लगाओगे तब तो स्प्रिंग और डैम्पर ऊपर नीचे ऑसिलेट करेंगे। अगर साइनोसॉइडल फोर्स नहीं लगाऊं और अगर स्टैटिकली एफ नॉट को लगाऊं तो ये खींचा का खींचा रह जाएगा बस। तो मैं ये कह रहा हूं कि चलो 5 न्यूटन लगाया आपने, तो लेट अस से कि ये यहां तक खींचेगा अभी। अब कांस्टेंट फोर्स लगाई है मैंने 5 न्यूटन की, तो इसका मतलब है कि एक कांस्टेंट स्टैटिक डिफ्लेक्शन आ जाएगा, लेकिन वो इस डेल्टा के बराबर नहीं होगा। क्यों? ये डेल्टा क्या है? ये डेल्टा तो mg लगाने पे स्टैटिक डिफ्लेक्शन था, अब आपने मास तो हटा दिया और अब आप सिर्फ 5 न्यूटन की एफ नॉट को खींच के लगा रहे हो, अपने हाथ से लगा रहे हो, मास नहीं है यहाँ पे। तो कितना डिफ्लेक्शन आएगा? कुछ तो आएगा। यू कॉल इट एज जीरो फ्रीक्वेंसी डिफ्लेक्शन और YST। दिस इज द मीनिंग ऑफ जीरो फ्रीक्वेंसी डिफ्लेक्शन। ये चीज समझ में आ गई है आपको? ये आपसे एक स्टैंड अलोन क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो फ्रीक्वेंसी डिफ्लेक्शन, YST। इट इज गिवन बाय एफ नॉट बाय के। कैसे मिलेगा? सिंपल है, 5 न्यूटन की फोर्स लगा रखी है, स्टैटिक डिफ्लेक्शन जब मिल जाएगा YST, उसके बाद मोशन नहीं हो रहा। जब मोशन नहीं हो रहा तो डैम्पर की फोर्स जीरो हो जाएगी, क्योंकि डैम्पर की फोर्स कब अपेयर होती है? सिर्फ तभी अपेयर होती है जब वेलोसिटी होती है।
अब जब आपका वाई एस टी डिफ्लेक्शन आ गया तो उसके बाद तो डैम्पर लगा के रखना और नहीं लगा के रखना एक ही बात है, क्योंकि उसमें वेलोसिटी नहीं है, सिस्टम वहां पे स्टैटिक डिफ्लेक्शन के बाद रुका हुआ है। तो कुल मिला के जो भी फोर्स है के कारण होगी, और फोर्स लगी हुई है 5 न्यूटन या एफ नॉट लगा रखा है, तो ये वाई एस टी कितना है? दिस इज सिंपली कैलकुलेटेड एज एफ नॉट अपॉन के। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ zero frequency deflection or YST. It is given by F naught upon K, where F naught is taken from the amplitude of the actual sinusoidal forcing function. ये F naught कहां से लेके आओगे? ये मनगढ़ंत फोर्स नहीं है, आपने अपनी साइनोसॉइडल फोर्सिंग फंक्शन को देखा और उसमें से जो एम्पलीट्यूड था उसको उठा लिया और उसको स्टैटिकली लगाया और ये चेक किया कि कितना डिफ्लेक्शन आएगा। दिस इज वाई एस टी। नाउ प्लीज समबडी टेल मी कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया? वाई एस टी या जीरो फ्रीक्वेंसी डिफ्लेक्शन क्या है? यस सर। ठीक है, गुड। अब ये सारी चीजें अपन को पता लग गई, अपन ने खूब सारे नए नए टर्म्स ले लिए। क्या क्या लिया? सबसे पहला तो ये डिसाइड किया सी ओमेगा बाई के को हम 2 जीटा आर लिखेंगे। एम ओमेगा स्क्वायर बाई के को हम आर स्क्वायर लिखेंगे और एफ नॉट बाई के को बाई एस टी लिखेंगे। नाउ यूजिंग ऑल दीज थिंग्स इन द एक्सप्रेशंस ऑफ योर वाई नॉट एंड फाई। वाई नॉट आपका ये था, फाई आपका ये था, इन दोनों में ये सारी चीजें रिप्लेस करके जब मैं लिख दूंगा तो मेरा फाइनल फॉर्मेट ये आ गया। वाई नॉट इज दिस एंड फाई इज दिस। ये कन्वर्जन करने में इतना टाइम लग गया, अदरवाइज वाई नॉट और फाई तो पहले ही मिल गए थे। मगर अब जो भी है वाई पी बना लो। वाई पी क्या था एक बार याद करें। वाई पी आपने एज्यूम किया था ये, वाई पी इज इक्वल टू वाई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई, ये एज्यूम किया था आपने। अब आपको यही परेशानी थी कि वाई नॉट नहीं पता था और फाई नहीं पता था, अब पता लग गया वाई नॉट ये है और फाई ये है। तो इन चीजों को इधर डाल दो। देखो वाई नॉट, ये पूरी चीज वाई नॉट आ गई। देखो दिस होल थिंग इज वाई नॉट मल्टीप्लाइड बाय साइन ओमेगा टी माइनस फाई। अब यहां पर फाई को ये पूरा टैन इनवर्स करके लिखना है, लेकिन यहां पर थोड़ी सी जगह बचाने के लिए नहीं लिखा, मैंने अलग से लिख दिया वेयर फाई इज नोन एंड इज गिवन बाय 22। ये रहा, ठीक है। तो वाई पी मिल गया, कुल मिला के बात ये है। अब अपन को क्या करना है, वाई सी भी मिल गया, वाई पी भी मिल गया, इन दोनों को जोड़ करके वाई बना लेंगे अपन। यही अपना प्लान था पहले से ही, भाई वाई सी मिल जाए और वाई मिल जाए तो हम ये करेंगे वाई इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी, सो वी गेट आवर कंप्लीट सोल्यूशन। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। ये वाई सी था, ये वाई पी है, इन दोनों को ऐड किया और हमने बोला कि ये रहा सब आपका सोल्यूशन। ठीक है। अब इस पूरे सॉल्यूशन में अब आपको ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पार्ट के ए और ये थीटा, ये दो चीजें इनिशियल कंडीशन लगा करके ही प्राप्त होंगी। ये अपन ने अंडर डैम्प्ड सिस्टम के सॉल्यूशन में भी देखा था। तो इनिशियल कंडीशन क्या है ये आप बता दो, उनसे ए और थीटा भी निकल के आ जाएगी और उसके बाद आपका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। बट इफ यू आर आस्क्ड दिस डेरिवेशन इन द एग्जामिनेशन, आप इस इक्वेशन को इस लेवल पे ला करके छोड़ दीजिए और ये कह दीजिए कि देयर आर ओनली टू अननोन कांस्टेंट्स नाउ, ए एंड थीटा, एंड these कैन बी फाउंड बाय अप्लाइंग इनिशियल कंडीशंस। बस, ठीक है। ये हो गई अपनी पूरी कहानी। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन देयर इज अ फोर्सिंग फंक्शन, यानी कि फोर्स्ड वाइब्रेशन का सॉल्यूशन निकाल लिया आपने। दिस इज योर कंप्लीट सॉल्यूशन। अब इसमें आगे की कहानी और आती है। टू टर्म्स appearing in the complete solution represent two parts of the vibration of the system. ठीक है। The first part represents transient vibrations
and the second part represents steady state vibration. ट्रांजिएंट जो है, इस अंग्रेजी शब्द का अर्थ कोई समझा सकता है क्या? एनीबडी, एनी स्टूडेंट हु हैज even the slightest notion about the meaning of the word transient? वाइब्रेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। देखो, अंग्रेजी की किसी भी चीज का वाइब्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, टर्म्स यूज होती है। तो ये ट्रांजिएंट जो वर्ड है एक इंग्लिश वर्ड है। वाइब्रेशंस को तो आप भूल जाओ, आप सिर्फ ये बता दो किसी को कोई आइडिया है क्या? एनीबडी? Sir, a short period of time. Very good. Something that is not permanent, something that will die after some time. आप ये कह सकते हो कि सारे इंसान जो हैं they are transient beings appearing as a glimpse in the story of the universe. एक ब्रह्मांड की कहानी में हमारी जो जीवन है वो भी ट्रांजिएंट है। पैदा तो हो गए लेकिन कुछ समय के बाद सब खत्म हो जाएंगे। So something that is not permanent is called as transient. ठीक है, तो ये बेसिकली ट्रांजिएंट वाइब्रेशन का क्या मतलब है? ट्रांजिएंट वाइब्रेशन का मतलब है, ये बोल रहा है कि YC पार्ट जो है आपके सॉल्यूशन का वो ट्रांजिएंट है, और YP पार्ट जो है वो अनश्वर है, वो स्टेडी स्टेट है, वो अनंत काल तक चलेगा। हालांकि अनंत काल तक तो कुछ नहीं चलती, लेकिन इसका टर्म का मतलब ये है कि ये YP वाला पार्ट तब तक चलता रहेगा जब तक आपने एक्सटर्नल फोर्सिंग फंक्शन को लगा के रखा हुआ है। लेकिन एक्सटर्नल फोर्सिंग फंक्शन को लगा के रखो चाहे नहीं लगा के रखो, YC वाला पार्ट जो है वो थोड़े समय के बाद खत्म हो जाएगा और दिखेगा भी नहीं। अब देखें इन दोनों पार्ट्स को, ये YC वाला पार्ट है जो हम कह रहे हैं ट्रांजिएंट है, और ये YP वाला पार्ट है जो हम कह रहे हैं कि अनश्वर है, अनंत काल तक चलेगा। या फिर थोड़ा और प्रिसाइज ये होगा कि ये तब तक चलता रहेगा जब तक आपने अपना एक्सटर्नल फोर्सिंग फंक्शन लगा रखा है। एक्सटर्नल फोर्सिंग फंक्शन वापस से देख ले क्या है। ये सिस्टम है और ये पकड़ करके आप चला रहे हो इसको F0 sin ओमेगा टी से। ये जो मैंने लाइन बनाई है ये बेसिकली एक स्टेम जैसा मान लो, जिसको पकड़ के आप इसको ऊपर नीचे शेक कर सकते हो। दैट इज एक्चुअली व्हाट इज मीनिंग हियर। अब आप हाथ से नहीं करोगे, कोई मशीन लगा दोगे, मोटर लगा दोगे, इंजन लगा दोगे, वो काफी है, ठीक है। लेकिन ये ओमेगा की स्पीड से इसको आप चला रहे हो। तो कहने का ये मतलब है जब तक ये F0 sin ओमेगा टी इस मास को चला रहा है तब तक ये पार्ट हमेशा नजर आता रहेगा। लेकिन आप इसको चलाते रहो, 1 2 3 4 मिनट के बाद ये वाला पार्ट जो है ये आपके हाथों से फिसल फिसल के खत्म हो जाएगा। दिस विल एंड अप। ये कैसे पता लगा? गणित की भाषा को थोड़ा बहुत भी अगर आप जानने लग जाएं तो आप जहां पर भी नेगेटिव एक्सपोनेंशियल टाइम फंक्शन देखें वो सारे फंक्शन नश्वर होते हैं, उन सब का ग्राफ डीकेइंग ग्राफ होता है। वो टाइम कर्व की तरफ को मरते चले जाते हैं और इवेंचुअली जीरो होंगे ही होंगे। यहां पर आप देखोगे, हो सकता है कुछ लोग कंफ्यूज हो, यार यहाँ तो साइन भी बैठा है तो इसका मतलब ये ऐसा भी होगा? बिल्कुल होगा, साइनोसॉइडल भी है और एक्सपोनेंशियली डीकेइंग भी है। इसका मतलब क्या है? इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो ये जो पार्ट है इसका सॉल्यूशन यही है। साइनोसॉइडल भी है और धीरे धीरे खत्म भी होना चाहिए। हो गया ये क्या चीज है? अंडरडैम्प्ड वाइब्रेशन है आपकी, इसी का सॉल्यूशन तो है ये। नश्वरता नेगेटिव एक्सपोनेंशियल टाइम फंक्शन से आ गई, ऑसिलेशन साइन फंक्शन से आ गई, दोनों को कंबाइन किया तो धीरे धीरे समय के साथ समाप्त होती हुई या खत्म होती हुई साइनोसॉइडल फंक्शन आ गई। अब इसको देखो, इसमें क्या है? इसमें कहीं पे भी कोई डेथ फंक्शन है क्या? डेथ फंक्शन का मतलब जो इसको समय के साथ खत्म कर दे, वो सिर्फ एक्सपोनेंशियल डीके होता है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं इसमें। YST कांस्टेंट है, नीचे की पूरी टर्म कांस्टेंट है,
साइन फंक्शन है तो इसका मतलब साइनोसॉइडल आ गया, ओमेगा की फ्रीक्वेंसी है। तो ये मैथमेटिक्स लगा करके ये टर्म आपको क्या बोल रही है कि आपको जब तक ओमेगा की फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है तब तक ये जो टर्म है ये चलती रहेगी चलती रहेगी, इट इज नॉट गोइंग टू एंड, बट दिस टर्म इज गोइंग टू एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंशियल टाइम फंक्शन। समझ में आ गया ना सबको? ट्रांजिएंट का मतलब कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगी, स्टेडी स्टेट का मतलब मेंटेन्ड रहेगी, इट विल मेंटेन अ स्टेडी स्टेट। ठीक है, तो ये देखो ट्रांजिएंट पार्ट ऑफ वाइब्रेशन ये हम देख चुके हैं। स्टेडी स्टेट पार्ट ऑफ वाइब्रेशन मेंटेन्ड रहेगा, देखो इसका एम्पलीट्यूड चलता जा रहा है चलता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है, ऐसे ही बनता जाएगा ये अनंत काल तक, जब तक आपने एफ नॉट साइन ओमेगा टी लगा रखा। ठीक है, एंड इवेंचुअली आप ये कह रहे हो एक पार्ट ऑफ सॉल्यूशन तो है जो मेंटेन रहेगा, स्टेडी स्टेट है, दूसरा पार्ट ऑफ सॉल्यूशन है जो ट्रांजिएंट है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या मैं ये कह सकता हूं कि 5, 10, 15, 20 मिनट जब समाप्त हो जाएंगे तो मेरा जो टोटल सॉल्यूशन है उसमें से ये गायब हो जाएगा, तो सिर्फ यही मेरा सॉल्यूशन रह जाएगा? ये बात सही है कि गलत है, आप बताओ। मैं सिस्टम को फोर्स्ड वाइब्रेशन दे रहा हूं और देते देखते 15, 20, 40 मिनट हो गए। ठीक है, क्या मैं ये कह सकता हूं कि काफी सारे समय समाप्त होने के बाद अब मेरे को ये कॉन्फिडेंस होगा कि भाई ये तो मर ही चुका होगा, अब बचेगा तो सिर्फ यही, तो मेरा टोटल सोल्यूशन ही ये हो गया ना? सही है कि नहीं है, बता दो आप। यस सर। बिल्कुल सही है, यही होता है फोर्स्ड वाइब्रेशन के केस में। अब यहां देखो, जो पार्ट कुछ समय बाद समाप्त हो जाना है उसकी फ्रीक्वेंसी तो ये है, ये डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी है बेसिकली, जिसको आप ओमेगा डी से जानते हैं। और जो पार्ट इवेंचुअली घंटों घंटों के बाद भी मेंटेन रहेगा उसकी फ्रीक्वेंसी ये है, और ये फ्रीक्वेंसी आपके फोर्सिंग फंक्शन की फ्रीक्वेंसी है, इट इज एफ नॉट साइन ओमेगा टी। तो इवेंचुअली बात वही हो गई कि आप अगर किसी सिस्टम को ओमेगा की फोर्सिंग फंक्शन से फोर्सफुली वाइब्रेट कराते हैं तो कुछ समय के बाद में आपके सिस्टम की फ्रीक्वेंसी भी वही हो जाएगी जो आपके फोर्सिंग फंक्शन की फ्रीक्वेंसी है। सो नो मैटर व्हाट सॉर्ट ऑफ स्प्रिंग मास एंड डैम्पर सिस्टम यू ब्रिंग, अगर एफ नॉट साइन ओमेगा टी की फ्रीक्वेंसी आप दे रहे हो तो कुछ समय के बाद तो वो ओमेगा पे वाइब्रेट करने को मजबूर हो जाएगी, उसके पास कोई चारा नहीं रहेगा, कुछ समय तक वो अपना गेम ओमेगा डी के इंटरफेरेंस के साथ चलाएगी। अच्छा, अब ये है जब तक ये मरा नहीं है तब तक तो ये भी गेम खेलेगा, ये इसके साथ ऐड हो रहा है, तो कैसा दिखेगा वाइब्रेशन, ये भी मैंने बना दिया है। ये देखो, इस फिगर को देखो, तो जब तक ट्रांजिएंट पार्ट जिंदा है और वो स्टेडी स्टेट पार्ट के साथ में घुल मिल रहा है, ऐड हो रहा है, तब तक तो वाइब्रेशन का देखो कोई और छोर नहीं है, कुछ भी आ रहा है, ना तो साइनोसॉइडल है, इसका कोई माई बाप नहीं है, पता नहीं क्या क्या आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, उल जलूल दिखेगा। सो यू विल सी कि कुछ टाइम तक जब तक ये ट्रांजिएंट वाइब्रेशन इंटरफेयर कर रहे हैं, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी अलग है, स्टेडी स्टेट की फ्रीक्वेंसी अलग है, और इन दोनों को ऐड करोगे तो ऐसे ही उल जलूल कुछ आएगा। It's neither sinusoidal nor exponential, it is a mixture of something. लेकिन इतने टाइम के बाद में जब ट्रांजिएंट वाइब्रेशंस खत्म हो जाएगी तब आपको सेंसिबल वाइब्रेशंस दिखेगी। दिस इज द स्टेडी स्टेट पार्ट एंड दिस इज नाउ occurring at the same frequency at which you applied your forcing function omega। ये है आपका ओवरऑल रिस्पॉन्स इन द केस ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन। तो थोड़ा वेट करना पड़ता है सेंसिबल वाइब्रेशंस के अपीयर होने के लिए। Once the transient part is over, then the overall solution is simply comprised of your steady state part or the particular integral solution only, and the complementary function solution disappears because it is transient in nature। ये है इसकी कहानी। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्लास में अपन इससे आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन एक नया कॉन्सेप्ट लेके आने वाले हैं, मैग्निफिकेशन फैक्टर। ठीक है, आई विल सेंड यू द नोट्स एंड बोथ द लेक्चर्स टुडे, बट प्लीज स्टे अप टू डेट विद द एजुकेशन, क्योंकि आगे आगे जैसे जैसे आप देख रहे हो आप कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहे हैं, मैथमेटिक्स भी थोड़ी सी टफ होती जा रही है। मैं नोट्स तो आपको दे रहा हूँ, मेरी मेहनत पानी में ना जाने दें। काफी घंटे मैं घर पे स्पेंड करता हूँ कि भाई किताबों में से पढ़ना आपके लिए मुश्किल होगा, तो इसीलिए इसको जितना हो सके अपनी भाषा में एक्सप्लेन करना, चीजों को रिप्रोड्यूस करना। I spend a lot of time making these notes, so at least take some time and read them, क्योंकि मैं ये आपको गारंटी दे रहा हूँ आप नोट्स पढ़ लोगे तो आपको किताब देखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, these are very good notes, don't let it go to waste. Anyway, please stay with me, I'll take your attendance.